As today the world is of technical education, and you can see that in today's world we are having the technology everywhere, and the person who is having the core knowledge of how to use the skills and particularly the basic language skills, he is able to survive in the world. So, as far as the message for the students is concerned, you must learn about the new technologies, including the new techniques and the way how you have to present the skills in front of the world. You need to learn about languages, particularly your communication skills and the English language, which is very important in terms of putting up and putting forward your ideas in front of the world. And that would be actually a very nice platform where you could be able to learn many new skills from your faculty. Not just the skills, rather your communications skills will be boosted up, and that would be actually a good platform for you. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Anara, and I am an instructor of English language here in Al Hayat Institute of Medical Science and Technology. Basically, we have conducted today a welcome party for our new students, where we tried to explore the features of Al Hayat Institute of Medical Science and Technology. Our brilliant faculty explored different rules and regulations in front of them. In addition to that, the students were exposed to the facilities of this institution. The message which I want to convey to the new students is this is actually a platform where you could explore many things, where you will be given up a platform where you could show your skills and your capacities. And the faculty here is really very cooperative. You can come up with your queries and they will solve all your questions. And with that, not just this very institution will help you out to develop your academic skills, rather it will also teach you how to boost your inter and intrapersonal skills, how to get interacted with different people, how to show up yourself in the society in a better way. So all the best and welcome again to Al Hayat family. वेलकम पार्टी हमने रखी थी जो न्यू कमर्स आए थे उनके लिए था। जो है वो हम इनको ये सारी चीज़ें इंस्टीट्यूट के बारे में बताया कि यहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम्स है, इसका आगे क्या स्कोप है। तो इस वेलकम पार्टी जो है वो हमने रखी थी आज। जो है इंस्टीट्यूट के बारे में जो है वो मैं बता दूँ कि यहाँ पे डिफरेंट जो है वो प्रोग्राम्स करवा रहे हैं, जो 2 ईयर्स के भी हैं और 4 ईयर भी है। तो 2 ईयर्स में जो प्रोग्राम्स है उसमें भी हैं जो है वो MLT का करवा रहे हैं, 2 ईयर डिप्लोमा RGT है, डिस्पेंसर है, इसके साथ जो है वो B कैटेगरी का भी जो है वो प्रोग्राम करवा रहे हैं और OT का करवा रहे हैं। इसके साथ जो 4 ईयर्स हमारे पास प्रोग्राम्स है वो भी जो है वो BS OT करवा रहे हैं, RGT करवा रहे हैं, MLT करवा रहे हैं टेक्नोलॉजी। उसमें बेसिकली ये चीज़ें पढ़ा रहे हैं कि थिएटर में जो है वो डिफरेंट जो है वो प्रोसीजर कैसे होते हैं, ऑपरेशंस इनको जो है वो हमने कैसे करते हैं, ये चीज़ें पढ़ा रहे हैं। तो सर्जरी से रिलेटेड है। की इम्पोर्टेंस में मैं बताऊंगी जो है वो अभी यहाँ पे मैंने अभी BS जो है वो क्या कहते हैं OT का बताया, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का बताया। तो जब हम ऑपरेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे जो है वो ये देखा जाता है कि एक सर्जन की जो है वो यही कॉन्सेप्ट है कि एक सर्जन परफॉर्म करता है। लेकिन ये बात यहाँ पे जो है वो एक सर्जन का काम नहीं है, उसमें जो है वो बहुत सारे जो है वो लोग आते हैं, सर्जिकल टीम आती है, उसमें जो है वो टेक्नीशियंस आते हैं, नर्स होते हैं, वो सारे मिल के जो है वो एक प्रोसीजर करते हैं। तो इसमें जो है वो पैरामेडिक्स का जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है। सादिया जहान है और मैंने मेट्रिकुलेशन डीजे हाई स्कूल मोहम्मदाबाद दनियोर से ही किया हुआ है और मैं अल हयात में मैंने चूज़ किया है OT डिपार्टमेंट। और ये इंस्टीट्यूशन बहुत ही अच्छा है और मुझे यहाँ के बहुत ही मज़ा आया। मैं तो चाहती हूँ कि मैं लोगों की मदद करूँ, जितना मुझसे हो सकता है इतना मैं कर लूँगी। आई ट्राई माई बेस्ट। मैं पब्लिक को ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो भी चाहते हैं कि वो नर्स बने तो वो ये इंस्टीट्यूशन ही चुन ले। यहाँ पे पढ़ाने का अंदाज़ और टीचर्स रेगुलर है और स्टूडेंट्स भी एक्टिव है। शकीला परवीन है और मैं गदर से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैंने मैट्रिक सेकेंड ईयर DGA LRS फंडर से किया है और मैंने अभी नर्सिंग के लिए अल हयात हॉस्पिटल में आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा है। और मैंने डिपार्टमेंट चूज़ किया है OT क्योंकि मुझे OT में अच्छा लगता है और ऑपरेशन करते वक्त डॉक्टर की मदद करना। मैं स्टूडेंट्स या जो भी बच्चियों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अपनी बच्चियों को घर में ना रखें और वो नर्स बनना चाहते हैं तो उन्हें अल हयात में लाए क्योंकि ये बहुत अच्छा है। मैंने इस कॉलेज में एडमिशन इसलिए किया है कि इसके अंदर जो डिसिप्लिन है उसको वो बहुत अच्छा है और दूसरा उधर टीचिंग के
टीचिंग की जो पढ़ाने का अंदाज है वो भी बहुत अच्छा है, और वो अच्छी तरह से समझाते हैं, और जो समझाते हैं वो जल्दी समझ में आ जाता है। और दूसरा इसके अंदर जो रूल रेगुलेशन है वो भी बहुत अच्छा है, इसलिए इस कॉलेज के जो मैनेजमेंट है वो भी बहुत अच्छे किया गया। रहमान रहीम, मेरा नाम रफ़ी है कि मैं ऑडिट डिपार्टमेंट से हूँ और ये अल हयात का स्टूडेंट हूँ। और अभी जो है रिसेंटली मैंने जो है एफएससी करके मैंने जो है एडमिशन ले लिया है। तो ये अल हयात बहुत अच्छा इदारा है, ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, सारे टीचर्स अच्छे हैं, अच्छे पढ़ाते हैं, मेथड्स अच्छे हैं, ठीक है कि नहीं। बहुत उम्मीदें हैं कि जो है ना हमें यहाँ से कुछ बन के जाना पड़ेगा, यहाँ से कुछ बन के जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ओटी का सारा काम जो है हम कर चुके हैं, लेकिन जो है यहाँ पे हमें थ्योरी के लिए यहाँ पे मजबूरन आना पड़ा, लेकिन यहाँ पे जो सारे टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत जो है ना कुछ सीखने को मिलेगा हमें। तो लिहाजा जो है ना इस इदारे के हवाले से या फिर टीचर के हवाले से हमें जो है ना कोई मायूसी नहीं मिली अभी तक, ठीक है कि नहीं। बहुत सारे अच्छे मतलब जो है टीचर्स हैं, तो लिहाजा कुछ बन के जाएंगे इंशाल्लाह। वालेकुम, मेरा नाम अतहर हुसैन है, मेरा ताल्लुक़ छलत नगर से है। मैं यहाँ पे फ़र्स्ट ईयर डिस्पेंसर से मेरा ताल्लुक़ है, डिपार्टमेंट मेरा फ़र्स्ट ईयर डिस्पेंसर है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अल हयात जो इंस्टीट्यूट है इसमें जो है वो अटैच हॉस्पिटल है, जहाँ पे हमें प्रैक्टिकल के लिए बहुत सारे मौक़े फ़राहम हैं। हम सेकंड शिफ्ट में यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो हमारे लिए जो है वो ये मौका बहुत ही अच्छा मौका है, हमें इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। और मैं बज़ात ख़ुद जो है वो डिस्पेंसर टेक्निक जो मैंने डिपार्टमेंट मैंने चॉइस की है वो इसलिए चॉइस की है कि कल जब यहाँ से फ़ारिग होकर मैं अपने माशरे में जाऊँ तो वहाँ पे मैं जो है वो इंसानियत की खिदमत कर सकूँ। शाहीन है, मैं इस कॉलेज से हूँ। मुझे पहले से ही नर्सिंग की बहुत ही शौक़ थी, तो इसलिए मेडिकल फील्ड मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने सोचा कि सेहत फाउंडेशन में करूँ। लेकिन यहाँ आके सेहत फाउंडेशन मुझे अच्छा नहीं लगा और इसलिए मैंने अल हयात में एडमिशन लिया है। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि जान है तो जहाँ, लेकिन जो भी घर में है तो उनको चाहिए कि अपने बच्चों को नर्सिंग में अगर वो इंटरेस्टेड है तो उनको यहाँ ला के एडमिशन करवाए, ताकि एक अच्छी सेहत यहाँ से लेके और अच्छे वो नर्स बन के जाए और लोगों की खिदमत करने का मौका फराहम हो जाए उनको भी। और इसके बाद यहाँ पे आके मुझे पता चला कि ये सेहत फाउंडेशन का बिल्डिंग जो है ये भी अल हयात का जो बिल्डिंग है ये भी बहुत प्यारा है। और यहाँ आने के बाद मुझे बहुत खुशी हो रही है कि घर वाले भी याद नहीं आ रहे हैं बस यहाँ पे आके। तो थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाइस्ता रहमत है और मैं यासीन से ताल्लुक़ रखती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे बीएसएन करने का बहुत शौक़ था, लेकिन अपनी फाइनेंशियल वजूहात की वजह से मैं बीएसएन नहीं कर सकी थी। फिर मैंने सोचा कि बीएसएन नहीं हुआ तो क्या हुआ, आगे भी मेडिकल कुछ फील्ड है उसमें जाऊंगी। फिर मैं गिलगित में आई, गिलगित के में आने के बाद सिहत फाउंडेशन जीबीएस वगैरह में गई, लेकिन वो मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आए, क्योंकि उधर के टीचर्स जो है ना इतनी फ्रेंडली नहीं थे जिस तरह के फ्रेंडली इधर अल हयात में टीचर्स है। तो इधर आई तो और इधर ऐसा होता है कि जो फाइनेंशियल वजूहात की वजह से अपनी स्टडीज़ आगे नहीं रख सकते, तो उन्हें चाहिए कि अल हयात में आए, क्योंकि अल हयात में आपके फ़ी कंसेशन भी होता है और सारे आपके प्रॉब्लम्स जो होते हैं और इधर हल होते हैं। और इधर सारे स्टूडेंट्स और सारे टीचर्स बहुत फ्रेंडली हो गए रहते हैं, इसलिए मैं चाहूँगी कि आप इधर आए। थैंक यू सो मच। मेरा नाम सकीना अब्बास है, मैं होपर नगर से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं आज पेरेंट्स के लिए एक मैसेज कहना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके बच्चे नर्सिंग में जाने का शौक़ रखते हैं, उनकी इंटरेस्ट नर्सिंग में होता है, लेकिन पेरेंट्स कहते हैं कि उनको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, और स्टूडेंट्स को मौका नहीं देते हैं अपने औलाद को। तो मैं आज वालिदैन से कहना चाहूँगी कि जिनके बच्चे जो है वो इंटरेस्टेड है नर्सिंग में, उनको नर्सिंग यानी मेडिकल किसी फील्ड में जाने के। जो पेरेंट्स हमारे हैं वो अनएजुकेटेड होते हैं और उनको मालूम नहीं होता है बच्चों की इंटरेस्ट और उनके शौक़ के बारे में। तो बच्चे तो वो एजुकेटेड होते हैं ना, वो उनको अपने पेरेंट्स को समझाना चाहिए और वो उनको वही करना चाहिए जिस चीज़ में उनकी इंटरेस्ट है। सर ज़्यादातर पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो अपने औलाद को जो है उनको टाइम नहीं देते हैं, और वो बस यही सोचते हैं कि अगर उन लोगों ने पढ़ा है यहाँ तक, मतलब पढ़ा है, एजुकेटेड है, तो उनको बस बड़े से बड़े नौकरी मिलनी चाहिए या गवर्नमेंट की, ऐसा सोचते हैं पेरेंट्स, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा नाम ज़हरा जबीन है, मैं हुंज़ा से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं यहाँ नर्सिंग कर रही हूँ।
الحیات میں وہی کرنا چاہیے جو ان کا جو ہے انٹرسٹ ہے، جس فیلڈ میں وہ انٹرسٹ رکھتے ہیں وہی ان کو کرنا چاہیے تاکہ ان کا فیوچر بنے۔ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اسپیشلی جو بچے ہوتے ہیں وہ جو ہے جنک فوڈس کا استعمال کرتے ہیں، جن کو جو ہے نا استعمال نہیں کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں ہو سکتی ہے، تو ان کا اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے اور فریش فوڈ وغیرہ استعمال کرنا چاہیے۔